काफ़ी बार शार्क टैंक में अनुपम मित्तल ने पूछा कि आपका वैल्यूएशन आगे किसने किया है, एंड आई वाज लाइक हैप्पी कि मैंने किया है वैल्यूएशन. सो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स who have even featured on Shark Tank. I would have done around 50 to 60 valuations. The government is promoting the major benefit as a tax holiday of 3 years. But very few startups know कि गवर्नमेंट पहले एडवर्टाइज करती रहती है, बजट में 20-21 बार स्टार्टअप वर्ड आता है, बट देर इज़ ओनली 3% सक्सेस रेट of eligibility being given under that scheme. So ultimately I've seen a lot of founders who would do round at a higher valuation or a substantially higher valuation, जिसकी वजह से उनका next round of funding अटक जाता है. So hi, I'm Mehul Shah, a chartered accountant by profession, and I can say I would have built good ventures around me, starting from my CA practice to you can say having a right identification about the gap in Surat, that there is no co-working space in Surat. So we initiated a concept of co-working space called iCowork in 2018. Then we identified a gap that in 2020 there is still a gap in doing a matchmaking between startups and investors. So that is where I joined as an angel investor and advisor in one of a leading you can say angel network of India now, called Ivy Growth, which hosts a flagship event called 21 by 72. So I'm one of the core team member. So we do run a lot of syndicates. We have invested into 120 plus startups through that syndicates. And recently I've been engaged with one of another venture, which is more of a generative AI around judgments. And we plan to become the first legal discovery platform with access to more than 15 lakh cases with AI powered summaries as well as interaction with your legal cases. So thank you so much, Mehul, for joining us. And today we will be uncovering your journey into this field. So my first question is, what's your background basically? How did you, came into this field and started investing in startups, mentoring startups? So you can say my journey started more as a service provider because I belong to a third generation CA. So my father has been a practicing CA for the last 40 years. My grandfather was a tax practitioner. So when I cleared CA, I could identify कि जो नए new age entrepreneurs हैं, they want old wine in new bottle. मतलब उनकी need अलग है, dynamic है. They just don't want a sort of compliance services from a chartered accountant, but they would want someone to guide them कि LLP कब बनानी है, company कब बनानी है. They want guidance कि पैसा bootstrap करना है, बैंक से लोन लेना है, फिर external funding पे जाना है. अगर एक्सटर्नल फंडिंग पे जाना है तो राइट डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, राइट डील स्ट्रक्चरिंग क्या होनी चाहिए, CCPS के थ्रू रेस करना है, कन्वर्टेबल नोट के थ्रू रेस करना है, अगर कन्वर्टेबल नोट के थ्रू रेस करा है तो फ्लोर या कैप क्या होना चाहिए. सो माई इनिशियल जर्नी स्टार्टेड विथ अ मिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ वॉट आई लर्नड ड्यूरिंग माई CA जर्नी, एंड आई कैन से दैट आई हैव बीन अ गुड in academics and also an academician because I have taught a lot of CAs as a visiting faculty. And I've got an all India rank in CA, all 3 exams of CAs as well as CMA. So I've tried to rope in my knowledge during my academics into my practice. So that was the starting point. As you were asking Aditya about investment, earlier I was very conservative about investment into startup because it's a very risky asset class. At the same time, there is a liquidity risk involved. Startup चलता रहेगा फिर भी ज़रूरी नहीं है, चलो फेलियर का तो रिस्क है ही, but even if it is going well, there is a risk where I would not find any buyer if I need money. So even as a caveat, I would say, because a lot of people want to become angel investor, they want to change their LinkedIn profile by saying that I'm been an investor now. But so you should analyze the risk, I would say. But yes, 2020 was the year when I understood that the ecosystem has been very organized now. Organized in a way कि हर एक इंडस्ट्री की एक पहले अनऑर्गेनाइज होता है फिर ऑर्गेनाइज होता है, वैसे फंड रेजिंग भी एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी. तो कोविड के बाद द होल इकोसिस्टम मूड ऑनलाइन, कि आज फाउंडर को पता था कि इन्वेस्टर बेंगलोर में है, मैं भी बेंगलोर में हूँ, फिर भी फिजिकल मीटिंग नहीं करनी है. इट्स अ जूम मीटिंग, इट्स अ Gmeet मीटिंग और एनी अदर वीडियो SDK प्लेटफॉर्म. सो जो पूरी इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट द मीटिंग पार्ट और पिचिंग पार्ट, बट द प्रोसेस, कि पहले पिच डे होगा, उसके बाद सॉफ्ट कमिटमेंट्स आएंगे, सॉफ्ट कमिटमेंट्स के बाद हम ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे. आफ्टर ड्यू डिलिजेंस देयर वुड बी एन हार्ड कमिटमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स विच वुड अल्टीमेटली culminate into money in the bank through the use of SHA signing.
तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होगी, एंड दैट इज़ वेयर वी फॉर्म्ड another angel network company where I am again an angel investor and the core part of the decision making organization. So that's the syndicate through which we have invested into 120 startups, out of which around 50% were through our syndicate, where we would have pulled money into our AIF and then invested into startups, and remaining 50% would be a pure investment which we would have done. So I think my next logical question is, what's your criteria? I mean, you have invested in 120 startups. That's a lot of numbers, right? So what's your criteria? What do you look when you are investing in such startups? So initially, like everyone else, we started with a FOMO कि बाकी सब कर रहे हैं हम भी करें. But then luckily we did well in a way that we are still a very young angel network. By we I mean the company IV Growth. But still we could have got 9 exits in 1.5 years, which is pretty good thing. So that helped us to portray that we have good validation. At the same time, जो हम event करते हैं every year in the name of 21 by 72. So 21 by 72 is a latitude and longitude of Surat. Okay. So that is where we wanted to portray that every tier 2 city of India has equal potential, whether you talk about any city who is a tier 2 city apart from metro. Like Indore is coming up as a startup hub in India, right? So as well as Surat. So my last visit to Indore was in the last month, which was my first visit as well. Okay. To Indore, and I could see that Surat and Indore have grown together, not just a tiebreaker in cleanest city of India, but also a tiebreaker in most of the things around startups. That is what I could perceive, because in a single day I attended 3 to 4 events as a speaker or even as an audience, and I could perceive that एक growth जो ecosystem का होता है maybe initiate होता है community building से, कि community startup की बनती है, फिर it goes to creating good founders, and then it maybe transit into raising funds for startups from that city. तो वो ग्रोथ मैंने देखा इंदौर और सूरत का काफ़ी पैरेलल हुआ. अच्छा, जैसे आपने इतने सारे स्टार्टअप्स में किया, तो फाउंडर्स की क्वालिटीज़ मैंने ज़्यादातर देखा, लोग फाउंडर्स की क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आप स्पेसिफिकली क्या देखते हैं जब आप फाउंडर से मिलते हैं या आपकी पूरी टीम मिलती है, तो वो क्या स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हम देखते हैं? So one is like getting married to the idea and this startup per se, that if that founder is into multiple business, then purely from an investment perspective, like even government grant देती है तो पूछती है कि whether you are full time or not. So one is that criteria which we do. Second criteria is more like we look for more emerging trends. So that doesn't remain the same across all the years. But if you take an example, 2017 was more of fintech, because even government, with the advent of GST and the नोटबंदी हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ पेटीएम एंड ऑल दैट, सो वो जो डिजिटलाइजेशन हुआ तो उसके अराउंड काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड हुआ, तो देयर इज मोर ऑफ फिनटेक. अगर कोविड के अराउंड देखें तो D2C ब्रांड्स प्लेड अ गुड रोल, बिकॉज काफ़ी लोग जो घर पे थे दे केम अप विद एन आइडिया, वो भी एक रीज़न था. और D2C ऑफकोर्स इट एलिमिनेट्स द होल मीडिएशन चेंज, जहाँ पे लॉट ऑफ मनी गोज इनटू डिस्ट्रीब्यूटरशिप. वो अगर हाँ, तो वो अगर प्योरली अगर वेबसाइट के थ्रू बेचने से अगर डायरेक्ट वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को आती है, तो ऑफकोर्स दैट कंपनी इज गोइंग टू बी मोर प्रॉफिटेबल. सो वो एक स्पेस हमने देखा जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे और हमने भी किए होंगे. एंड देन देयर वाज अ शिफ्ट टूवर्ड्स EV. सो अगेन समथिंग विच इज़ वेरी अडॉप्टेबल. जैसे कुछ स्टार्टअप के बजवर्ड होते हैं जो बजवर्ड है लेकिन अडॉप्टेबल नहीं है, जैसे कि ब्लॉकचेन आया, NFT आया. सो वी कुड यूज़ दिस एज अ बजवर्ड, बट मेरे सामने मैंने कोई देखा नहीं कि NFT का कोई पेंटिंग बिक गया हो, या सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज सेक्टर्स. बट देन एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर ऐसे है जहाँ पे EV है, तो मुझे दिख रहा है रोड पे ग्रीन कलर के जो EV चल रहे हैं, एंड इट इज कीपिंग ऑन गेटिंग इंक्रीज्ड. So EV was one sector where we invested right from battery manufacturing to battery swapping to EV manufacturing to even last mile logistics. So वो एक ट्रेंड मुझे 2021 में दिखा, 2022 में, एंड 2023 has been more of artificial intelligence. So one more aspect which we look for particularly for ideation startup. ये ideation इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ideation startup पे क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या कर रहा है. So when I look at ideation startup, I say that see, one is product market fit. So हम इसलिए भी ideation startup पे इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज we don't feel that we have that much time to invest to understand the product market fit.
बट वंस द स्टार्टअप से इसके हमारे 100 कस्टमर्स है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है कि 100 लोगों ने अगर इनकी प्रोडक्ट खरीदी है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बना होगा तो ही तो 100 लोगों ने खरीदा होगा. सो दैट इज़ वन रीज़न वी लुक एट ट्रैक्शन. सेकेंडली फिर भी अगर कोई आइडिएशन स्टेज वाला स्टार्टअप है वी लुक एट द एंट्री बैरियर कि अगर इनके बाद कोई स्टार्टअप आता है देन व्हाट इज़ द एंट्री बैरियर कि वो कॉपी नहीं कर सकता या फिर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं ले सकता. सो इफ़ आई गिव यू वन एग्जांपल, देयर वाज वन स्टार्टअप वर्किंग ऑन एंटी एजिंग. सो ही हैड डन इनफ रिसर्च टू प्रूव कि और कोई स्टार्टअप अगर मेरे जैसे सप्लीमेंट्स बनाता है देन ही वुड हैव टू डू इक्वली गुड रिसर्च जो 3-4 साल लग जाएंगे. सो दैट इज़ एन एंट्री बैरियर. तो वहाँ पे उनका सेल्स अगर कम है या इवन से द MRR इज सेल इवन लेस देन 3 lakh, we would have invested, and I can say that after our investment the deal got enough weightage in the Shark Tank, and the sharks invested after our investments. So that was again a good validation of investing into a startup जो ideation level पे था, and it got validated in Shark Tank, and the shark invested into higher valuation. So that was again a validation about how we deal with valuation of such startups. राइट. आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा एक इंसाइट आपने ये दिया कि अगर आइडिएशन पे भी कोई है और उस स्टार्टअप में एंट्री बैरियर है तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो ये देखेंगे ऑब्वियसली तो उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि यार आइडिएशन पे आज फंडिंग मिलती है नहीं मिलती है. तो आपने बहुत ही अच्छे से उसको आंसर करा. उसी में मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है, तो क्या नंबर्स या क्या वैल्यूएशन आप देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे फाउंडर्स को भी क्लैरिटी आए कि हाँ किस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट मिल सकती है. राइट. So with this I would say that founder has to look at this fundraising more like a journey. जैसे आज IPO लाना है तो उसके सेपरेट कंसल्टेंट्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर होती है, और उनके भी उतने इनपुट्स होते हैं कि राइट वैल्यू डिस्कवरी क्या होनी चाहिए और राइट वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो इफ़ यू से देयर इज़ अ न्यूज़ और अनाउंसमेंट कि Mamaearth इज़ गोइंग टू कम विद एन IPO, तो इवन द वैल्यू डिस्कवरी प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो स्टार्टअप में भी ऐसा ही है. इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने 100 करोड़ 200 करोड़ की वैल्यूएशन कर ली और ऐसा है कि इन्वेस्टर ढूंढ लिया तो अच्छा है, बिकॉज यू नीड टू लुक एट द जर्नी. हो सकता है कि एज अ फाउंडर को भी बेनिफिट नहीं है हायर वैल्यूएशन, बिकॉज मनी इज गोइंग टू कम टू द कंपनी नॉट टू हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट, एंड दैट मनी हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सो अल्टीमेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाउंडर्स हु वुड डू राउंड एट अ हायर वैल्यूएशन और सब्सटेंशियली हायर वैल्यूएशन, जिसकी वजह से उनका नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग अटक जाता है. सो इट्स एज गुड एज रनिंग अ स्टॉक मार्केट. यू कैन से क्या स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम नहीं होते तो वो स्टॉक स्टैग्नेंट हो जाता है. सो यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज़ योर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी राउंड. सो अगर आप एक गलती करते हो वेर यू ओवर वैल्यू और स्टार्टअप, तो नेक्स्ट राउंड ही नहीं होगा तो वॉल्यूम ही नहीं आएगा. अगर वॉल्यूम नहीं आएगा देन दैट इज़ अ वेरी बैड यू कैन से एस्पेक्ट फॉर एन इन्वेस्टर कि अब मैं पैसा बाहर कैसे निकालूंगा नेक्स्ट राउंड नहीं होगा तो. ठीक है. तो अगर मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है मतलब एज एन इन्वेस्टर, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे आपने 120 कंपनीज में किया तो आई नो बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे, तो अगर वो कुछ आप बता सकें तो. So challenges would be again there is a learning curve for us as an investor also. So initially we would have invested more into early stage startup. फिर थोड़ा frankly कहूँ तो ऐसा भी realize हुआ कि say not all but 10% of the startups में we are not just funding the startup but we are funding the lifestyle of the founder. कि आज एज एन इन्वेस्टर मैंने कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया बिकॉज आई एन से किया 2-3 घंटे में क्या जाता है, बट आई हैव सीन फाउंडर्स ट्रैवलिंग इनटू बिजनेस क्लास फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वंस देयर इज फंडिंग. लॉट ऑफ फाउंडर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जैसे ही फंडिंग होता है दे कीप ऑन गेटिंग अवार्ड्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे हमने काफ़ी हमारा थीसिस भी चेंज किया. वी हैव टेकन करेक्टिव एक्शंस ऑल्सो वेयर पॉसिबल. काफ़ी जगह वी हैव प्रोग्रेस फ्रॉम completely investing into early stage deal to more growth stage deal. काफ़ी बार हमने ऐसा भी thesis लिया कि we will not take a lead in for this particular startup, so we have told the founder कि पहले आप कोई अच्छा VC ढूंढो, because we thought there is boards need to be more curated and they need to have one permanent board member who is a representative from VC. So हमने ऐसे भी deals किए जहाँ पे we delayed the deal just because we wanted them to get a lead investor. And based on what lead investor is there, we have co-invested with them. So investment किया है but as a co-investor किया है. So there are those are some few I would say measures which you have taken, because ultimately we just don't invest our money but we are also like a more like influencers in the startup industry. कि हम अगर फर्स्ट चेक देते तो 100 लोग ऐसा मान के बैठते कि इन्होंने अगर फर्स्ट चेक दिया then this is a good startup. So that also gives
more roles and responsibility for us. If someone is going to follow us, then we need to make sure that even if it is a minimal investment of say 10 lakhs or 15 lakhs, we need to do it with some responsibility and learn. So what's the सूरत ecosystem right now? और कितने startups जिनमें आपने invest किया वो सूरत से हैं इस वक्त? So initially जब मैं चालू किया था, it was more Surat centric, Right. because उस टाइम पे सूरत में there are very few startups, hardly I would say less than 5 startups who had got funded. So the first 10 deals which we did, like more or less 5 or 6 would be out of Surat. Also because I had been an active community person, so I had been attending a lot of events, I had been hosting a lot of events into my co-working. So एक founders कुछ आइडेंटिफाइड थे जो पंचुअल थे, जिनको शायद मेरी कोवर्किंग में से भी कोई डील हमने की होगी, तो आई वुड हैव ऑब्जर्व दैट पर्सन कि यार वो रोज़ 10 बजे आ जाता है, 8 बजे तक बैठता है, काफ़ी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि 12 बजे तक कोवर्किंग चालू रखो. सो आई सीन देयर हसल, so that helped to identify also. So initial few deals were more out of Surat, because that was also one of the objective also when we say to the investors to invest or take that risk कि आज आप एक हमारी सिटी का ही मतलब एक बूस्ट कर रहे हो या भला कर रहे हो. But then eventually it's a full-time game where we need to ensure कि ultimately investors का risk diversify होना चाहिए. At the same time investors को better deals मिलनी चाहिए, और इन्वेस्टर का कंफर्ट जोन होना चाहिए जहाँ पे दे कैन एक्सपेक्ट कि चलो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इनटू 10 स्टार्टअप्स, देन एटलीस्ट आई एम गोइंग टू गेट सम गुड IRR विच इज़ मच बेटर देन दी FD, और इफ आई हैव टेकन दैट रिस्क, और इफ आई हैव डन दैट रिस्क एपिटाइट. तो वहाँ पे फिर देन वी आर न्यूट्रल कि अब आफ्टर 3 years इफ़ यू से सूरत और अदर थिंग डजंट मैटर टू अस एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न. ऑफकोर्स एज फार एज हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सीलेटर प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है या इवेंट्स है, वहाँ पे हम ऑफकोर्स चाहते हैं कि सूरत के या पर्टिकुलर गुजरात के ज़्यादा से लोग पार्टिसिपेट कर उसका बेनिफिट ले. बट एज फार एज प्योर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, नाउ मोर देन फाउंडर सेंट्रिक वी आर इन्वेस्टर सेंट्रिक, कि इन्वेस्टर्स का जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल होना चाहिए. सो वी सिट विद इन्वेस्टर्स, हम उनका पूरा थीसिस बनाते हैं कि आपको आइडियली कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या करना है, कौन से सेक्टर में आप apart from just investment you can provide some sort of value addition as an angel investor. So जो मनी और स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, सो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं. कुछ इन्वेस्टर्स को ये भी पूछते हैं कि स्ट्रेटेजिकली आप कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहोगे. मे बी सो देयर आर सम इन्वेस्टर्स वुड वांट टू स्टार्ट एज एन एंजल इन्वेस्टर, बट दे हैव दैट कैपेसिटी कि हम पूरी की पूरी कंपनी भी हम ही टेक ओवर कर ले. सो वो ऑब्जेक्टिव से भी कुछ इन्वेस्टर्स है. तो वी मेक दैट थीसिस. द प्योर रोल विच वी टेक एज एन एंजल नेटवर्क इज कि स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे कम करे. सो रिस्क कम करने का एक ही, आई वुड से नॉट एक ही, बट प्राइमरी लॉजिक है कि हम डाइवर्सिफाई करें, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. तो उसी के लिए हम ट्राई करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स की कैपेसिटी है उसमें से जो एलोकेट कर रहा है स्टार्टअप एसेट क्लास को, तो वो एलोकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करे बाय इन्वेस्टिंग दैट एलोकेशन इनटू 10 स्टार्टअप्स और 20 स्टार्टअप्स. So that is the pure objective which we undertake. Achha, do you think at this moment in 2024 startup has become a fad because younger generation is starting up making businesses just for the sake of funding? I have seen this trend. What's your comment on that? So again, I would say so a lot of my comments would be very much on the extreme side, because only then it would make sense of podcast. बहुत neutral बोलूँगा तो बहुत generic चीज़ें आएगी. So again, a disclaimer from my side to any viewer कि जो मैं extreme कह रहा हूँ that is just one perspective of that thing. Don't try to quote it in a way कि it is coming from me as Mehul Shah. It is more or less coming as a different perspective. So if you say as a fad, I would say yes, many a times fundraising has become a fad, because the first thing which you do after fundraising is having a proper PR. लेकिन एक तरीके से वो गलत भी नहीं है, because any marketing has cash burn. मतलब marketing expense is one head, even from the accounting angle I can say कि it is pure cash burn, कि उससे कितना ग्रोथ होगा मुझे नहीं पता है. जैसे मान लो आज मैं सैलरी पे खर्चा करता हूँ, तो आई नो कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग से एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी इन वन स्टाफ, अब मैं 30 दिन में उससे उतना तो वसूल कर ही लूँगा एट इज़ जो सैलरी में पे कर रहा हूँ. बट दैट डजंट हैपन विद मार्केटिंग स्पेंड्स. सो इफ आई डू अ कैश बर्न ऑफ 1 lakh rupees on as a Facebook or Instagram ad, I do not know what sort of ROS I am going to get. If I am hiring some influencer for as a reel, I don't know exactly what sort of traction I might be able to get, because that depends on very dynamic factors. So
सो मार्केटिंग स्पेंड में मानता हूँ कि मोदी जी भी आज स्टार्टअप वर्ड को एक फैड बना दिया है, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन. तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आज मैं अगर कोई इवेंट में कहता हूँ आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, दैट हेल्प्स मी इन आइस ब्रेकिंग. शायद मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो और वो लाइन यूज़ नहीं करता हूँ, तो शायद मैं किसी का नेटवर्किंग ही नहीं कर पाता. बट वंस आई से आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, देयर आर 5 पीपल गैदर अराउंड मी जो मुझे पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो. So the Fed associated with the word startup I have always liked, because that has helped to ice break, that has helped to strike more conversation. But the Fed associated with the fact that हम profitable business पे focus नहीं करते हुए next round of funding करते रहते हैं. So that is something which is which should be avoided. So once we get a required amount of funding, then the focus should be more on how to burn this cash, but at the same time create a profitable business for the future. What's your take on D2C? As you told me right now that marketing spend is a cash burn, right? So how do you think D2C works? And do you invest in D2C startups? Because from my point of view, what they put in the ads, they take into the sales, right? So it's proper cash burn every month. And if they start that, if they stop that cash burn, they don't get any sales. What's your take on that? So Aditya, I think you identified the problem very well. So we would have invested into D2C startup, as I said, because एक जो mediator का जो cash बचता है, there is always good to increase the profitability from a investor point of view. But at the same time, I have seen a lot of mistakes committed by founder in the D2C space. One is valuing their company through revenue multiple. So और जो investor की भी गलती है. So I can say in 2021-22. lot of startups announce the round कि वो लोग 4 करोड़ रेस कर रहे हैं. Now when we do a valuation of a startup, we assume कि ये 4 करोड़ रुपए आएंगे, वो ग्रोथ में डिप्लॉय होंगे, और वो डिप्लॉयमेंट के बाद मेरा नेक्स्ट 3 years का प्रोजेक्टेड सेल्स बढ़ेगा. बट देन दिस स्टार्टअप्स आई ऑब्जर्व दे स्टॉप्ड बाई डूइंग अराउंड ऑफ 50 lakh कि 4 करोड़ रेस कर रहे थे. मे बी इन्वेस्टर्स मिले बिकॉज D2C स्पेस वॉज फ्लरिशिंग, बट दे कुड नॉट गेट इनफ इन्वेस्टर्स, तो 50 लाख पे राउंड स्टॉप कर दिया. But the valuation which they kept was the same, which they announced when they say we want to raise 4 crore, and no investor raised an objection. Now what happened कि of course वो 50 लाख के एड स्पेंड करेंगे तो सेल्स तो होगा ही. So then they have raised the next round by saying कि हमने फर्स्ट राउंड 50 lakhs का किया है, अब हम 6 महीने बाद दूसरा राउंड करना चाहते हैं, and my sales is doubled, so my valuation is also doubled. But शायद वो वैल्यूएशन डबल वो तो होनी ही थी. वो तो उन्होंने फर्स्ट राउंड जब किया तब वो प्रोजेक्शन में दिखा ही था. शायद ट्रिपल दिखा होगा प्रोजेक्शन में, तो डाउन राउंड होना चाहिए मेरे हिसाब से. बट इन्वेस्टर्स हैव बिलीव्ड दिस फ्रंट की सेल्स डबल होता है तो वैल्यूएशन डबल होता है, बिकॉज यू डू अ वैल्यू रेवेन्यू मल्टीपल. सो दैट हैज क्रिएटेड अ बबल इन द D2C space a lot. Even if I recollect, I personally interviewed Aman Gupta and I asked the same question, and he very well replied कि पहले जो मल्टीपल मिलता था 7 times 8 times of the revenue, that is curtailed to 2 times or 3 times, which I think is a valid multiple even in the D2C space. और 2 times or 3 times भी तभी मिलना चाहिए when you are actually selling on your website. So I've seen a lot of D2C startup जिनका 60-70% sales अभी भी Amazon या Myntra से हो रहा है, but they still call themselves a D2C startup. So वहाँ पे मल्टीपल और भी कम होना चाहिए, because you are already ending up paying a huge commission and huge marketing spend. So I feel revenue multiple वाली method avoid कीजिए, या फिर करते भी है तो 2 to 3 is a good revenue multiple for a D2C startup. And I think they are dependent on a platform, other third party platform, जो कि कभी भी उनकी सेल मतलब बंद कर सकता है या कुछ भी रीजन से रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं. तो बहुत ही सही पॉइंट आपने बोला कि अगर आप अपनी वेबसाइट से सेल नहीं कर रहे हो तो रेवेन्यू या मल्टीपल आपका कम होना चाहिए काफ़ी. अच्छा, जब भी हम शार्क टैंक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसमें ये वैल्यूएशन वाला पॉइंट हमेशा आता है. तो कई सारे लोगों को नहीं पता होता कि वैल्यूएशन होती कैसे है एक्चुअली. तो अगर उस पर आप कुछ लाइट डाल सको. सो अगेन एज ए वैलिडेशन आई कैन वेरी प्राउडली से कि काफ़ी बार शार्क टैंक में अनुपम मित्तल ने पूछा कि आपका वैल्यूएशन आगे किसने किया है, एंड आई वॉज लाइक हैप्पी कि मैंने किया है वैल्यूएशन. सो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स who have even featured on Shark Tank, I would have done around 50 to 60 valuations. So when any startup founder comes to me for guidance on valuation, I always ask him like one of the 2 questions कि यार तुझे सिर्फ compliance के लिए करना है या genuinely value discover करके investors को reach out करना है. And the general answer is then actually मुझे valuation discover करके rightly play करना है. तो मैं पहले तो उसको 1-2 घंटे का वही ज्ञान देता हूँ कि कंप्लायंस के लिए कर रहा है तो शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं है. इवन वन ऑफ माई पार्टनर्स वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. बट
if you really want to discover the true value and the value potential, then we do one exercise prior to valuation which we call as financial modeling. So we actually ask the founder, we challenge the founder कि वो कहता है 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मैं चैलेंज करता हूँ तेरा कैश फ्लो नेगेटिव ही 4 करोड़ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आप ही के नंबर्स अगर मैं एक्सेल शीट पे प्लॉट करता हूँ, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट 4 करोड़, आप लोगे तो भी आपका शायद करंट अकाउंट में पैसा आइडल पड़ा रहेगा. सो वहाँ पे हम काफ़ी बार गाइड करते हैं कि आपको 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 करोड़ की है. काफ़ी बार वो प्रोसेस में भी गाइड करते हैं कि ठीक है आपको 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो भी आप 2 पार्ट्स में करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देयर इज़ नो सेंस कि शायद वो इन्वेस्टर का खुद का भी बिजनेस होगा जिसमें वो अच्छा खासा कमा रहा है, वो पैसे को मैं लूँ और उसको आइडल लिक्विड एसेट में पार्क करके रखूँ या करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट पे पार्क करके, उसका भी सेंस नहीं बनता है. सो वी वॉन्ट फाउंडर्स टू वैल्यू मनी. वी काफ़ी बार हम राउंड को ब्रेक कर देते हैं कि आप एक ब्रिज राउंड अभी करो, फिर नेक्स्ट राउंड बड़ा करो, और यू ब्रेक द राउंड इनटू CCD प्लस प्राइस राउंड. So that is where we play a lot of role apart from just valuation. Now coming up to the methods of valuation, of course one of the method is discounted cash flow method, which is also recognized by the Companies Act and the Income Tax Act. But we also do a lot of comparable transaction method का valuation. So we identify the right comparable in the industry. उन्होंने जो फंड रेजिंग किया तब उनका रेवेन्यू क्या था, उन्होंने कौन से वैल्यूएशन पे रेज किया, हु वर द राइट इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड इनटू दैट कंपनी. सो दैट इज़ वन वैल्यूएशन विच वी डू. एंड द थर्ड यू कैन से माई ओन मेथड इज़ व्हाट आई डू इज़ कि देखो अभी बिजनेस अनस्टेबल है, कैश बर्न हो रहा है, बट अल्टीमेटली द टारगेट इज़ कि बिजनेस को स्टेबलाइज करे. तो अगर स्टेबल बिजनेस हो रहा है जहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट स्टेबलाइज हो रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबलाइज हो रहा है, इट मे बी ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5. तो जो स्टेबलाइजेशन वाला ईयर है वहाँ उस टाइम का रादर मैं वैल्यूएशन करता हूँ, मे बी थ्रू रेवेन्यू मल्टीपल और प्रॉफिट मल्टीपल, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट नहीं, उस टाइम पे प्रॉफिट मल्टीपल होगा. तो मान लो से थर्ड ईयर इज़ माई स्टेबलाइज बिजनेस का ईयर, तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि चलो थर्ड ईयर में अगर IPO आता है तो लिस्टेड कंपनी ये सेक्टर में उनका मल्टीपल क्या है, विच इज़ अर्निंग मल्टीपल. सो थर्ड ईयर का अर्निंग मल्टीपल आई यूज़ थ्रू स्टॉक मार्केट कंपेरेबल्स, और वो जो वैल्यूएशन आता है फिर मैं फाउंडर को पूछता हूँ तुझे तेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कितना गुना रिटर्न देना है, मतलब 3 times, 4 times, 5 times. If we say 5 times, so we divide the valuation of third year by 5. And then we say, see, this is the value which you should need to give to the investor. This is my favorite method. मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये मेथड है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ. और काफ़ी बार ये मेथड से देयर हैव बीन, ये सेम टेबल पे देयर हैव बीन अ केस जहाँ पे फाउंडर ने खुद ही इन्वेस्टर ढूंढा है, बट माई रोल वॉज जस्ट टू मेक श्योर दैट द डील हैपन्स. मतलब इन्वेस्टर को भरोसा भी है आइडिया में, फाउंडर के कनेक्ट के थ्रू ही है. मे बी आई वुड नॉट हैव बीन अ रोल प्ले इन टर्म्स ऑफ हंटिंग एन इन्वेस्टर फॉर हिम, बट जस्ट बिकॉज आई वुड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये ऐसा कुछ कर सकते हो, या ये राइट वैल्यूएशन होनी चाहिए, राइट डाइल्यूशन होना चाहिए, एंड द डील हैज हैपेंड. आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम में गाइडेंस की ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कर भी रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ. तो इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ इंपॉर्टेंट इज अ को फाउंडर. अगर आप किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपके लिए एक फैक्टर होता है कि को फाउंडर होना ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों? सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड आस्क वियर्ड क्वेश्चन लाइक कि आप मर गए तो क्या होगा, आपका को फाउंडर नहीं है, या फिर मे बी हस्बैंड वाइफ है तो मे बी पॉजिटिव साइन एज वेल एज मे बी सम इन्वेस्टर वुड टेक अ नेगेटिव साइन. सो आई फील इट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस. बट येस, इफ़ द स्टार्टअप इज सच जहाँ पे एक्चुअली मार्केटिंग का भी रोल है, फाइनेंस का भी रोल है, ऑपरेशंस का भी रोल है, देन वी एक्सपेक्ट द स्टार्टअप टू हैव अ CTO, CEO, CFO, CEO. But yes, there are startups which are much driven by finance. There are some startups which are say cloud kitchen. तो cloud kitchen में maybe it is a concept similar to restaurant, but in a different way, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि चलो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा कैपेक्स होगा, यहाँ पे कैपेक्स कम होगा, बट सेल्स मैं उतना ही अचीव कर सकता हूँ. सो मे बी क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट मे बी आई वुड बी कंफर्टेबल विथ हैविंग वन फाउंडर, बिकॉज हिज फोकस शुड बी देयर इन टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी फूड, एंड मे बी ही शुड हैव अ बिजनेस सेंस कि इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, बट देन इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल प्ले. तो उस टाइप के सेक्टर में इवन वन को फाउंडर इज आई फील शुड बी ओके. राइट. अच्छा, काफ़ी बार क्या होता है कि कई सारे जो मतलब बिजनेसेस होते हैं और उसमें जो फाउंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं
कि फंड रेजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के बारे में, और उनको फंड मिल भी जाता है, बट लॉन्ग रन में अगर आप अभी भी देखें तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अनसक्सेसफुल रहे। तो उसके पीछे अगर आप कुछ कमेंट करोगे क्यों होता है ऐसा, या जनरल, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सबका कम हो रहा है अभी इस वक्त, तो ऐसा क्यों होता है और क्या मतलब कैसे बच सकते हैं इससे, अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? पॉजिटिव आई कैन से कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एक मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं, कि हम कोई भी पिच होता है बड़ा अर्ली स्टेज स्टार्टअप, वो दिखाता है कि मेरा मार्केट टैम सैम सॉम ये है, बहुत बड़ा मार्केट है, बट देन यू शुड ऑल्सो हैव अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी टू कैप्चर 30 to 40% ऑफ दैट मार्केट. इफ़ यू डोंट हैव दैट गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, या फिर मार्केट बहुत बड़ा है, एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, एंड इवन आप कुछ भी मेहनत कर लोगे, आप 1% या 2% ही मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो. तो दैट इज़ वेयर आई फील दैट फाउंडर शुड नॉट गो फॉर प्योर कैश बर्न ऑफ सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज एफ तक जाते हैं. से स्विगी, जोमेटो आर राइट बिकॉज दे वांटेड टू कैप्चर द मार्केट. ओला, उबर हैज डन राइट कि इन स्पाइट ऑफ लॉसेस दे मेड श्योर कि आज आपके मोबाइल पे ओला उबर के अलावा तीसरा डाउनलोड ना हो, या स्विगी जोमेटो की तरह तीसरा डाउनलोड ना हो. सो वो अगर इन ऑब्जेक्टिव है और वो कर सकते हैं, और वो बिलीफ है, इन्वेस्टर को भी आप कन्विंस कर सकते हो, देन इट्स ओके रेजिंग सीरीज एफ, सीरीज जी तक राउंड. बट अगर आप वो मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, देन आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन जस्ट कीप ऑन रेजिंग फंड्स. राइट, ओके. सो एज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, तो आपके फेवरेट स्टार्टअप्स कौन से हैं इंडिया के? So more than favorite, Aditya, I can say, and I already said that we evolve with times. So मैं सेक्टर या बिजनेस मॉडल उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ. तो आप ये सेम क्वेश्चन फेवरेट स्टार्टअप अगर आप मुझे एवरी ईयर पूछोगे तो नाम बदलते रहेंगे. बट फ्यू सेक्टर्स और नेम्स आई कैन गिव इज, लेटली आई ऑलवेज लव्ड इन्वेस्टिंग इनटू और रेजिंग फंड्स फॉर स्टार्टअप्स और मार्केट लीडर्स. सो टू गिव एन एग्जांपल, रिसेंटली वी क्लोज्ड द डील फॉर क्रिक हीरोज. So I observed a trend कि आज सूरत की बात करें, या even name any city which has grown and evolved with time, there are say 50+ turf in Surat, and most of the turfs are booked because lot of social events also now happen around cricket. तो लोग IPL की तरह, समाज हर एक कम्युनिटी का अलग IPL जैसा टूर्नामेंट होता है, हर एक कॉर्पोरेट्स आज उस टाइप के टूर्नामेंट्स करने लगे हैं. So and I always seen that in most 80% of the cases we are using Crick Heroes for स्कोरिंग. सो पता है कि एडोप्टेबिलिटी भी है और मार्केट लीडर भी है, एंट्री बैरियर भी है, बिकॉज क्रिकेटिंग के रूल्स इतने चेंज होते रहते हैं, या फिर इतने कॉर्नर रूल्स होते हैं, या बॉक्स क्रिकेट वाले खुद अपना रूल बना देते हैं कि ये ओवर में डबल करो स्कोर. तो वो सब चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है. सो क्रिक हीरोज आई वुड से इज वन रिसेंट डील विच वी हैव क्लोज्ड, वेयर आई कैन से यू ट्राइड to fulfill all the ticks as far as our thesis is concerned. Another CoinX is another deal which we are doing at present. So they are not into trading of crypto, but they are into proper accounting and taxation of crypto. So again that is one again market leader, जहाँ पे मुझे पता है कि 7 countries ऐसे हैं जहाँ पे when you want to do accounting or taxation around crypto, or maybe a reconciliation with all the exchanges, it's one of the best platform. So being a market leader, I would say, has become a change norm for me lately. कि वो सेक्टर का वो टॉप प्लेयर या सेकंड टॉप प्लेयर होना चाहिए, या मोट होना चाहिए, राइट वर्ड. ऑल्सो अ डिस्ट्रप्टर इन दैट सेंस कि काफ़ी इंडस्ट्रीज, आई सेड ओला उबर हैव बेट ऑल देयर कॉम्पिटिटर्स, एंड भले वो मेरू कैब हो या दूसरे लोकल कैब्स हो. बट देन से थर्ड, Blue Smart is one company who came with a different model, business model I would say, कि हम EV cars ही रखेंगे, हम हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स बाई करेंगे टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ कार्स वुड बी गुड. हम ड्राइवर को अपने पेरोल पे रखेंगे. तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल बट द सेम यूटिलिटी वैल्यू. So that is again we are still in the monitoring stage of how that company grows, but again a good new player I can say in the same industry. So that is where again I would want to invest. आई थिंक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं. हम एक पर्टिकुलर स्कीम की बात करते हैं जो कि है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट? तो उसमें अगर कोई स्टार्टअप अप्लाई करना चाहता है, बिकॉज काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा गाइड कर सको लोगों को. सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम केम इनटू प्लेस ऑन 16 जनवरी 2016, एंड आई वाज वाचिंग मोदी जी लॉन्च दैट स्कीम, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे एप्रीहेंशन था कि मैं जो चीज़ लास्ट 6 साल से सिटी के लिए कर रहा हूँ, इज़ इट गेटिंग acquainted or
through the what the government policy is. So I was very much excited about that scheme, and even after it was launched, मैंने next दिन से ही I considered that as my moat कि जो चीज़ मैं सोच रहा था अब वो on paper भी है. So very next day we have started registering startups through that scheme. We have tried to ensure कि कहीं ना कहीं वो स्कीम के थ्रू स्टार्टअप को राइट ग्रांट मिले, राइट एक्सेस टू इंक्यूबेशन या मेंटरशिप मिले. There is a special seed funding scheme where the government has allocated 400 crores. So a lot of startups we have tried to ensure guide them. और जहाँ पे कुछ कंसल्टिंग की ज़रूरत पड़े कि उनके लिए पिच डेक डिज़ाइन करना है या उनको फाइनेंशियल मॉडलिंग या 5 years के प्रोजेक्शंस बनाने अंडर दैट स्कीम. So we have made sure that maximum people could get enrolled in the scheme. So I would have helped or assisted more than 500 plus startups under that scheme in terms of some or the other success story. And later on, the 16th January was announced as a startup day just to celebrate the success of this scheme. So दूसरी एक चीज़ है which I would also like to point out is the government is promoting the major benefit as a tax holiday of 3 years. बट वेरी फ्यू स्टार्टअप्स नो कि गवर्नमेंट पहले एडवर्टाइज करती रहती है, बजट में 20-21 बार स्टार्टअप वर्ड आता है, बट देर इज़ ओनली 3% सक्सेस रेट ऑफ eligibility being given under that scheme. Okay. So through this medium maybe I want to reach out to the stakeholders that ज़्यादा स्टार्टअप्स को इसमें कवर करना चाहिए. सो टोटल 1,40,000 प्लस स्टार्टअप्स DPIIT में रजिस्टर्ड है. उसमें से टैक्स बेनिफिट सिर्फ 3,000 स्टार्टअप को भी नहीं दिया गया है, ऑल्दो एडवर्टाइज इन अ वे. और ऐसा मानो कि गवर्नमेंट की जो IMB कमिटी है, इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड, वो साल में एक बार ज़्यादा मिलती भी नहीं है. मतलब इट इज़ नॉट द केस कि वो रिजेक्ट करती है, वो मिलती भी नहीं है. बट सो जो वर्ड वो लोग बजट में अनाउंस करते हैं उसकी कमेटी कभी मिली नहीं. लास्ट कब मिली है, आई हैड डन एन RTI टू प्रूव. सो द लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन September 2023. उसके बाद एक भी स्टार्टअप की मीटिंग ही नहीं हुई है बोर्ड की. एंड नॉट अ सिंगल स्टार्टअप हैज़ बीन गिवन दैट सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी. And so I think government should make it right by at least ensuring a level playing field for all startups, and they should make sure कि जो इंटरमिनिस्ट्रल बोर्ड बनाया गया है वो एटलीस्ट मिले, एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करे. फिर भले उनके क्राइटेरिया में नहीं आता दे में रिजेक्टेड, बट देर वुड बी लॉट ऑफ लैक्स ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग. आई थिंक मैं अभी पहले कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रहा था, तो वो भी ये बोल रहे थे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कीम्स के, वो ऑफिस में बैठते हैं, दे डोंट नो कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है. और ना ही जो स्टेक होल्डर्स उन लोग ऐसे लोगों को लेते हैं जैसे आप जैसे हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए काफ़ी मतलब दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, राइट. तो अगर वो ऐसे स्टेक होल्डर्स को लें तो उन्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि स्टार्टअप में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं. और जैसे आप बता रहे हैं कि वो मिलते भी नहीं हैं, तो मतलब काफ़ी डिसर्टनिंग है ये सुनना या जानना. और स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं इंडिया में, उन्हें पता है कि काफ़ी मेहनत लगती है बिल्ड करने में, तो उनके लिए भी काफ़ी डिसर्टनिंग होता है कि यार हाँ, हमने किसी मतलब स्कीम बहुत अच्छी लगी सबको, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे नंबर्स आते हैं जैसा आपने बोला, बट अगर उसमें एलिजिबिलिटी ही काफ़ी कम है तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट. तो आई होप पॉलिटिकल इंटेंट इज़ गुड. दिस गवर्नमेंट इज़ डन इनफ वर्क फॉर स्टार्टअप्स. आई वुड से कि सक्सेस स्टोरी है ऐसा नहीं है, और वो सक्सेस स्टोरी बहुत ही ट्रांसपेरेंट बेस है, कहीं कहीं पैसे नहीं खिलाने पड़ रहे हैं, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है. तो पॉलिटिकल इंटेंट भी अब मे बी सो बिकॉज आई एम इन टच विद लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया टीम एज वेल. सो ऐसा नहीं है कि इंटेंट नहीं है, बट मे बी कहीं ब्यूरोक्रेसी प्लस इंटेंट के बीच में कुछ गैप है जिसकी वजह से डिले हो रहा है. आई होप वो डिले मतलब जल्दी सॉल्व हो, जब जितना भी टाइम लगे, बट चीज़ें थोड़ी फास्टर पेस पे जाएं. बिकॉज स्टार्टअप्स क्या मुझे लगता है नेक्स्ट 10 years ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्राइट, और वो हमें दिख भी रहा है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडिया में, जो चीज़ें हो रही हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं. तो आई होप वो जल्दी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी फाउंडर फंड्स रेज करना चाह रहा है तो उसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या टाइमलाइन है, कैसे करते हैं? वो बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, तो वो मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ आज आपसे. सो सी आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर अ इन्वेस्टमेंट किट. उसका एक फ्रेमवर्क 1 महीने का रखो, बिकॉज काफ़ी लोग वो 1 महीना नहीं देते हैं, तो उसलिए दे एंड अप वेस्टिंग 5 to 6 months ऑफ टाइम, बिकॉज एट एवरी इन्वेस्टर इंटरेक्शन दे वुड ट्राई टू चेंज दैट. सो इंस्टेड यू प्रिपेयर अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किट एंड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विच में अराइज ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस. मतलब सिर्फ पिच डेक रोटेट मत करो, पिच डेक के साथ आप फंड रेस करोगे, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, maybe some sort of sensitivity analysis, some sort of valuation report. So by investment kit I mean a proper Google Drive. फिर based on the seriousness of the investor you decide कि Google Drive में से जो सब folders है उसमें से कितना क्या share करना है. So if there is something related to your IP, maybe you would want to share it only with investors who are interested. तो
तो एक इन्वेस्टमेंट किट अच्छी बननी चाहिए आई वुड से. देन गो ऑल इन, कि एक बार इन्वेस्टमेंट किट आप खुद कॉन्फिडेंट हो, फिर गो ऑल इन एंड देन यू सिंपली नीड टू डू मोर एंड मोर इन्वेस्टर मीटिंग्स, यूज़ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल टूल्स. सो आई वुड से कि 3 कॉल टू एक्शन होने चाहिए. एक आपका लिंक होना चाहिए पिच डेक का, एक इन्वेस्टमेंट किट का, एंड एक वेर यू आस्क द इन्वेस्टर्स दैट इफ दिस इंटरेस्ट यू कैन बुक अ कॉल विथ मी. क्योंकि काफ़ी बार मीटिंग्स में भी एक टू एंड फ्रो काफ़ी होता है, एंड सो मे बी यू कैन यूज़ कैलेंडली और एनी अदर टूल टू एंश्योर दैट इन्वेस्टर्स बुक अ राइट मीटिंग, एंड देन वो मीटिंग के बाद आप जैसे भी उसको सॉफ्ट कमिटमेंट लेके क्लोज करो. सेकेंड थिंग, यू कैन ऑलवेज एंगेज कंसल्टेंट्स हु एक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो वहाँ पे भी मेरा इनपुट है कि द फाउंडर शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो थोड़ा अमाउंट एलोकेट कर सके फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट बैंकर. सो आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर हु डोंट वांट टू, of course, see, you may be in cash crunch, that may be one of the reason, so that is properly justifiable. कि आप do or die situation में या फिर आप आपकी एम्प्लॉय की सैलरी ही जस्ट पे कर पा रहे, तो यू मे नॉट वांट टू dedicate some amount for an investment banker. But at the same time, I have seen a lot of startup founders who would give a non-exclusive mandate to say 10 fundraisers. और वहाँ पे किसी का भी मोटिव नहीं होता, सब एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं कि या डील होती है तो ठीक है मुझे 3 टका 4 टका मिलेगा, बट नो वन वर्क्स ऑन अ सीरियस बेसिस टू एंश्योर. सो एक दूसरे पे डील्स पास होती रहते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस. बट देन इफ़ यू अपॉइंट अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकर, गिव एन एक्सक्लूसिव मैंडेट कि मैं आपको इतना रिटर्नशिप फी पे करूँगा, अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड द एफर्ट्स विच यू ब्रिंग इन. कि एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं 10 VC को रीच आउट करता हूँ, it entails a good amount of time, a good amount of goodwill value. So I would say you should appoint a consultant so that you can focus more on business. So particularly those startups who have raised say first round of funding and they are raising a proper second round of funding, I feel at least they should appoint a proper investment banker. उतना बजट आप अलग सेपरेट कर दो कि उतना टाइम आप खुद का बचाओगे बीइंग अ फाउंडर, और उतना टाइम आप बिजनेस पे डिवोट करोगे, श्योरली यू आर गोइंग टू रिकवर दैट अमाउंट. सो अगेन बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ फाउंडर्स कि 2 महीना इन्वेस्टर अपडेट्स से मुझे ऐसा आता है कि इस बार सेल्स डाउन क्यों गया, बिकॉज हम नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में बिजी थे. सो दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज. राइट. अच्छा, ये इसी के रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब भी आप इतने सारे फाउंडर्स से मिलते हैं तो कॉमन स्ट्रगल क्या है फाउंडर्स का? सो वन इज़ ऑफकोर्स द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज कैपिटल, बिकॉज यू मतलब आप बिकॉज देर इज़ नो लिमिट टू द राइट कैपिटल. तो सो एक पहला स्ट्रगल तो कैपिटल ही है. पहले उसने 5 राउंड रेस किए होंगे, फिर भी ये उठ से कि 6th राउंड के लिए कैपिटल नहीं है. सेकेंड स्ट्रगल जो मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, लाइक गेटिंग द राइट मेंटर्स ऑन बोर्ड. ऐसे मेंटर्स जो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस में हेल्प कर सके, या बट मे बी मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स डोंट फील दैट नीड, बट आई फील दैट इज़ वन समथिंग. आई हैव सीन स्टार्टअप्स जहाँ पे राइट मेंटर या एडवाइज़र है, तो दैट हैज़ हेल्प टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो बाकी स्ट्रगल वुड बी मोर ऑन द लीगल फ्रंट ऑल्सो. सो आई सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जहाँ पे ड्यू डिलीजेंस में पता चलता है कि ये रिटर्न TDS का नहीं भरा था, तो 200 रुपये की पर डे की पेनल्टी, एंड दैट इज एक्यूमुलेटेड टू 2 lakhs or 3 lakhs. सो दैट इज अगेन समथिंग वेयर यू कैन वेरी इजीली सेव अ कॉस्ट बाई सिंपली अपॉइंटिंग अ गुड कंसल्टेंट और अ CA, और इवन अ रीजनेबल CA वुड नो कि ये क्वार्टरली रिटर्न भरना है. सो दैट शुड बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट. वहाँ पे स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, जो मैं देखता हूँ काफ़ी बार होता है. एंड लास्ट स्ट्रगल वुड बी टू कैप्चर द राइट मार्केट, कि यू हैव दैट कैपिटल बट देन यू जस्ट रियलाइज़ कि डिमांड पे फोकस करूँ या सप्लाई पे फोकस करूँ, और वो फोकस नहीं राइट हो पाता, तो जो मार्केट का परसेंटेज कैप्चर होना चाहिए, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड मार्केट, यू फेल टू डू. मेरा एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कंप्लायंस कितना इंपॉर्टेंट, तो आपने इसी में आंसर कर दिया. बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जो स्टार्ट करते हैं जो कंप्लायंस थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, तो उसमें अगर आप कुछ गाइड कर सको लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस, और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितनी ज़रूरी है, आपको बाद में काम आती है. राइट. सो आई वुड से कि yes, compliance is required, and being from a CA fraternity and very active observer, I can say hiring a CA service is not a costly affair. मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स को शायद एक रील बनाने के लिए जो कॉस्ट एलोकेट करते हो, एंड ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइबल, यू गेट दैट मार्केट, राइट. बट इक्वली यू शुड वैल्यू अ कंसल्टेंट हु इज डूइंग योर compliance. It is not hard to find, and the rates or the fees which they quote are also not that exorbitant that you need to avoid that. But so cost of compliance is less, but cost of non-compliance will always be 10 times more when you end up paying penalties.
Okay, so I think we have had enough of questions about startup. Let's move on to personal questions. तो आपके बारे में जानते हैं थोड़ा, आपके लिए सक्सेस क्या है? Difficult question because I liked working 16 hours a day. Okay. And equally I've enjoyed traveling or reading or any sort of, and I've been lucky enough that I've got a good background in a way. Even people around me, not just a legacy firm, but my cousins have been such कि हम 6 जनों का ग्रुप था and we have always been good academicians. 2 डॉक्टर बने, 2 आज सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स है और 2 CA है, which Wow. includes my sister. So I have good people around me. Even my team, I would say कि अभी in a CA firm we have more than 10 CAs. Okay. And कहीं ना कहीं ये सब मेरे से 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं. Someone has even been my student first and then उन्होंने आर्टिकलशिप मेरे अंडर किए. Now they are one of the team leader in our group. So it's been a good journey, I would say, and I loved that working. तो success को इतना define नहीं किया because पता है lately मुझे ऐसा लगा it is better going with the flow. कि rather than defining a long term goal, I always loved defining a short term goal. कि यार 1 महीने में ये करना है, and then erase. मैं तो मेरा लैपटॉप पे पानी गिर के बंद हो जाए तो भी मैं मानता हूँ चलो वो इरेज कर नए से चालू करो. तो फिर मैं कभी सोचा नहीं कि उसमें कितने कॉन्टेक्स्ट थे, कितनी लीड्स थी, क्या थी. इवन फ़ोन चेंज करता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट द बैकअप. कॉन्टैक्ट के अलावा कोई बैकअप नहीं लेता हूँ. ठीक है कि नए से जर्नी शुरू करो. Very good approach to life. Next, what is money to you and how important it is? So more than money, I would say management of money is important, and right application of money would be important for me. अच्छा, अभी आपने टीम की बात करी तो ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था कि टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जर्नी में, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो स्टार्टअप की हो. क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग टीम? जैसे कि हर एक इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क होता है. आज मैं मशीन में कैपेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो भी रिस्क है कि क्या वो कैपेक्स से मैं उतनी डिमांड या मतलब इक्विपमेंट्स बना पाऊँगा, या फिर उतनी डिमांड भी होगी कि मैं बना दूंगा तो वो सेल होगा या फिर ऐसे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा और आइडल होकर स्क्रैप करना पड़ेगा. आज मैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना हो तो उतना ही रिस्क है कि वेदर इट वुड गार्नर इनफ eyeballs. But minimal risk which I see is always into humans, because they would, of course, if I employ the right team, they are going to give me at least 5x 10x returns. So I think building a good team is equally important, and we do have India में मैंने देखा कि we do have that मैन पावर. और पर्टिकुलर अभी नेक्स्ट 5 years देखते हैं तो सबको वो इच्छा है कुछ नया करने की. एंड आई एम वेरी वेल कंपेयरिंग इट टू यूरोप, जहाँ पे I go to Europe once a year. That is the only good application of money which I do. But I have seen people there being so lazy कि आज मैं 4 बजे if I walk into their showroom to buy something, they would say कि close हो चुका है. And मतलब तो वहाँ पे मुझे लगता है in India we have that aggressive business culture कि when you not genuinely close the door and if some customer walks in, you are more than happy to serve him. तो वहाँ पे तो वो ओपन का क्लोज सिर्फ टर्न कर दिया, देन दे डोंट वांट टू सेल. भले आप फिर लाखों का माल उनसे ले रहे हो, दे वुड नॉट वांट टू सेल इट टू यू. तो उससे आई फील वी हैव दैट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया, एंड दैट वुड श्योरली हेल्प टू बिल्ड अ गुड टीम एंड टेक इट फॉरवर्ड. What is your work-life balance? As you told me, like 16 hours a day. तो आपके लिए क्या है work-life balance? So I think work-life balance is something which I would try to justify myself in a way कि पहले वो आवर्स बैलेंस करने की ट्राई करते थे. नाउ आई एम ट्राइंग टू बैलेंस द मंथ्स कि चलो महीने में मे बी आई वुड टेक फ्यू शॉर्ट ट्रिप्स टू एंश्योर दैट मे बी इवन सैटरडे संडे, बिकॉज सूरत अर्लियर डिडंट हैव गुड फ्लाइट्स, बट नाउ वी डू हैव अ फ्लाइट एंड वेल connectivity to maybe Bangalore or Delhi. So I ensure that I have good trips at least during weekends wherever possible. I also try to convert some business trips into leisure trips कि एक बार अगर कहीं as a speaker जाना है तो I ensure कि I stay one day more and try. So that is the work life balance for me, and at the same time I have 2 good kids. One is like 8 years and one is 2 years. So I try to spend more time with them. Like I would say less time but more quality time would ensure that at least to make me feel that there is a good work-life balance. And my wife is also, she's a dentist, but she's enterprising enough that she knows what I do with startup investments. She knows and she supports equally well, and she has that intellectual knowledge also to understand that what is the right investment and what not. Right. Oh, very nice. Okay, so how do you enjoy life?
As you have already told me, but still I wanted to ask, how do you enjoy it? So two things which I do always is one is traveling. So I would say not focusing on the front की बहुत ज़्यादा travel, but at least I do 2 trips a year and I write a blog around the travel. And I've been lucky enough कि जब भी जैसे अभी स्विट्ज़रलैंड गया था आदित्य 12 दिन के लिए गए थे एंड एट द एंड ऑफ 10 days जस्ट रात को 2 बजे मुझे लगा कि ये होटल में अच्छा वाईफाई है, थोड़ा लिखते हैं. So I wrote a Twitter thread on how I covered 25 cities in 10 days with 2 kids. Right, and it got viral. I have seen that post. So right. I just slept at 4 a.m. after writing the post for 2 hours. फिर 4 बजे बाद थोड़ा 2 घंटे में नींद खुली तो आई वॉज लाइक यार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, 2 लाख व्यूज़ क्यों बढ़ रहे हैं. सो विथ एवरी रिफ्रेश आई कुड गेट एंड अल्टीमेटली इट्स रीच्ड अराउंड 7 million views. So wherever I have written something, maybe even नोटबंदी हुई तो 2,000 रुपये की नोट क्यों, I just written a blog and that also got viral with around more than 2 crore views, ended up on Indian Express, Hindustan Times and all sort of newspapers. So whenever there is some eventful thing in the country and I write something about it, I'm happy that it got good traction, and it all comes from my family because my dad has been making submissions and arguments for at least more than 5,000-6,000 cases of income tax. So he also loves writing a lot. And okay, so what are you currently working on? so lately I can say from the last 13 months, as I already mentioned कि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ उसकी एडेप्टेबिलिटी अगर दिखती है वो ज़्यादा पसंद है. सो मार्च 2023 वॉज अ ट्रिगर मंथ when I could again see कि AI पे लोग अडोप्ट हो रहे हैं, right from my kid to even my father who has been actively using ChatGPT even at the age of 65 for its right application under law. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ट्रिगर हुआ that I already being a researcher into income tax, I already have a repository of more than 5 lakh cases which I used to use it for my own study, as well as I had developed a website called IT80 Orders, just you can say as a project at that time, and over 20,000 CAs were using, including partners of big 4 firms. So everyone is using this as a repository. But what I thought, why not just not a database, but why not to use these judgments to train AI? So that is where we started a journey to train AI on the basis of this repository of 5 lakh cases. We got successful in income tax, so we thought that why not to deploy the same technology into GST and company law. And fast forward 13 months, we have tried to create a full community around advocates, chartered accountants and management consultants or consultants in general by creating a website called counselwise.com. So on counselwise.com, we have 2 aspects. One is building a GPT kind of model where आपको कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस आती है, GST की नोटिस आती है या कंपनी लॉ की नोटिस आती है, यू कैन सिंपली टॉक विथ AI एंड गेट द राइट प्रेसिडेंट्स. बिकॉज आज भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जज डिपेंड्स ऑन दी पास्ट प्रेसिडेंट्स कि आज ये सेम इश्यू पे पहले क्या हुआ था या ये सेम इश्यू पे पहले कोई जज ने. बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज इवॉल्व एज फार एज लीगल इस कंसेप्ट. भले हम कहते हैं कि इतने लिटिगेशन पेंडिंग है, इतने केसेस पेंडिंग है, लेकिन जो केस हुआ है वहाँ पे देयर इज़ अ राइट जूरिस्प्रूडेंस, राइट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बीइंग डन. सो वी यूज़ AI टू फाइंड प्रेसिडेंट्स कि आप अगर कोई फैक्ट्स हमें लिखते देते हो या फिर आप कोई आप PDF भी अपलोड करते हो, वी विल एंश्योर कि 1960 से लेके जितने भी केसेस हुए हैं और डिजिटल मीडियम पे अवेलेबल थे और हमारे रिपोजिटरी में है, विल हेल्प यू फाइंड द राइट कंटेक्चुअल जजमेंट विच कैन हेल्प यू टू फाइट फ्यूचर केसेस और लाइव केसेस. So that is one application. Second application of artificial intelligence which we have done is lot of these judgments are running into 200 pages, 300 pages. And as a CA or an advocate, I don't know that मुझे कितने judgments पूरे पढ़ने चाहिए, कितने में सिर्फ overview लेना चाहिए. So right application of artificial intelligence which we are doing is trying to summarize these cases in the right way. So उसके लिए जो हमने काफ़ी prompt engineering किया है, and we have tried to ensure that 200 पन्ने का जजमेंट भी आपको एक पैरा के अंदर कैसे दिखाया जाए, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू रियली डिग डाउन एंड रीड द फुल जजमेंट. सो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस व्हिच वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट 13 months. वी हैव लॉन्च्ड अ वेबसाइट वेरी रिसेंटली जस्ट टू अंडरस्टैंड उसमें काफ़ी सारी फीचर्स अभी कमिंग सून में है, बट स्टिल आई वुड लव टू गेट फीडबैक फ्रॉम एनी ऑडियंस हु इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट. उसके साथ हमने एक सर्विस बनाई है वेर वी हैव ट्राइड टू ऑनबोर्ड
20 गुड कंसल्टेंट्स. सो आज स्टार्टअप की भी मैंने एक नीड समझी कि ESOP एडवाइजरी. So there are very few experts who practice into ESOP advisory. Then say Gift City consultant. So there are a lot of demand on one side कि मुझे Gift City में फंड बनाना है, मुझे Gift City में कोई कंपनी चालू करनी है. So very few consultants are there who can consult end to end in the Gift City part. So I tried to onboard 20 premium consultants, and any startup or any CA or advocate who needs to have a higher consultation. जैसे मेडिकल फील्ड में भी आज एक एक्सपर्ट का अलग होता है कि आप की नी रिप्लेसमेंट के लिए अलग लोगों के पास जाओगे, तो वैसे ही वी हैव एक ऑनबोर्डेड 20 कंसल्टेंट्स जिनके साथ आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हो, एंड देन आवर जॉब इज जस्ट टू कनेक्ट देम, एंड देन बोथ ऑफ देम कैन टेक इट फॉरवर्ड. आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ फेस करी है. कोई भी अगर लीगल केस होता है तो उसमें मतलब हमें नॉलेज नहीं होती, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई वेबसाइट अगर हो जहाँ पे हम जो भी हमारे साथ हो उसको अपलोड करके इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें कि नेक्स्ट क्या करना है, तो बहुत ही हेल्पफुल है नॉर्मल लोगों के लिए भी, कंसल्टेंट्स के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी. आई थिंक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आई होप आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो और आपको उसमें सक्सेस मिले. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट बुक्स और मूवीज़ जो आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहते हैं. So for me, books, एक टाइम था where I used to read a lot of books. Even I'm a subscriber of Amazon Kindle Unlimited जो edition है. But lately, बुक्स से ज़्यादा it has things have more mood in a way कि छोटा छोटा ब्लॉग पढ़ लो, because एक अल्टीमेटली एक बुक रीड करने के लिए कमिटमेंट चाहिए. So still recently, one of my good connect, Anushka Rathod, has written a book of Zebraland. Two of my partners have also written a book with the publisher Zebraland. So lately I've been reading. So book I would always read from someone whom I know. So Sarthak Ahuja is again one good connect and acquaintance. So उसने जब फर्स्ट बुक लिखी, and I'm very a good fan of him, जो शॉर्ट में वो videos बनाते हैं. Right. So people I know, when they write a book, I'm the first person to buy it or seek from them. आपको इन्फ्लुएंस कौन करता है? So influence, I think, everyone and anyone whom I meet. Like if I met Aditya, then I know that like मैं 2-3 सवाल भी आपसे किए and you shared about yourself, then I know that this is something which I can adopt in a better way. So anyone, whether it's a startup founder or whether it's a new investor I meet, I think not fully तो भी उनकी कुछ बातें तो ऐसी होती है जो इन्फ्लुएंस करती है. सो आई हैव नेवर बीन अ फैन इन दैट वे कि ये मेरा आइडल है. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम माय फादर माय आइडलाइज टोटली, बट आई ऑलवेज थॉट कि कोई आदमी ख़राब नहीं होता, कोई आदमी बहुत अच्छा नहीं होता, बट वी शुड टेक द राइट juice out of his journey or learning, and I would want my audience also to do the same, कि not believe me totally, but yes, whatever you feel right you can adopt, so that would save your time. कि जो चीज़ शायद मैंने 10 साल में सीखी, I would want कि लोग वो तुरंत सीखे और उतना टाइम बचे. राइट. आई थिंक एक मतलब इसमें सेइंग भी थी कि दूसरों की गलती से जो सीखता है वो समझदार होता है, राइट, क्योंकि अपनी गलती से तो सब सीखते हैं. ओके, सो आपकी क्या एडवाइस है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? One is you should take the right decisions at the right time, and once you take a decision, then you should work very rigorously to just follow that. I've seen lot of entrepreneurs जो फंडिंग लेना है नहीं लेना है, लाइक 12 महीने तक मैं उनको जितनी बार बोलता वही डिसीजन मेकिंग में बिजी है या कन्फ्यूज्ड है. सो इन्वॉल्व द राइट मेंटर और कंसल्टेंट, बट टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड वर्क ऑन दैट डिसीजन. Second thing which I would say that work on value proposition than valuation. So right value proposition करो, valuation will follow. And I would say do not work in haste, but work with pace. तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेलरेट करना ज़रूरी है. एंड देर आर गुड एक्सेलरेटर्स ऑल्सो विच यू शुड अप्लाई. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर फंड फ्रॉम अ एंजल नेटवर्क और अ VC, you should always try reaching out to accelerators, because they can help you taking you from destination A to B with pace. So thank you so much, Mehul ji, for joining us and giving us so much wisdom in this short conversation. I hope audience सीखे इस पूरे podcast से and कुछ करे, build करे, क्योंकि इंडिया, यंग इंडिया का ही है आगे आने वाले टाइम में. So thank you sir, thank you so much for joining.